بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم کلاس 8 کے سبجیکٹ جیو میں چیپٹر نمبر 3 کو شروع کریں گے، اور اس کے جو لانگ کوشچنز ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو اس کی ریڈنگ کرواتا جاؤں گا۔ اس کو آپ نوٹ کیجئے گا۔ یہ آپ کا چیپٹر نمبر 3 ہے، اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے اوشنز اینڈ سیز، یعنی سمندر۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب سب سے پہلے میں آپ کو اوشن اینڈ سی ان دونوں کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اردو میں تو ہم دونوں کے لیے عام طور پر سمندر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر اگر ہم جغرافیہ کی زبان میں بات کریں تو اوشن کو اردو میں جغرافیہ کی زبان میں بحر بولا جاتا ہے، بحر۔ ٹھیک ہے، اور جو سمندر ہے، سی جسے ہم بولتے ہیں، اس کو ہم جغرافیہ کی زبان میں بحیرہ بولتے ہیں، بحیرہ، بحر اور بحیرہ۔ ٹھیک ہے، اب اوشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ A large body of water on the surface of earth is called ocean۔ زمین کی سطح پر پانی کی ایک بہت بڑی شکل کو ہم اوشن یا بحر بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر سی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے: a smaller body of water adjacent to ocean is called sea۔ سمندر سے جڑی ہوئی، سمندر سے ملحق پانی کی ایک قدرے چھوٹی شکل کو ہم انگلش میں سی اور اردو میں بحیرہ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے بحیرہ عرب آپ نے سنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو وہ بحیرہ جو ہے یہ سمندر ہے یا سی ہے، اور جو بحر الکاہل وغیرہ ہیں یہ اوشنز ہیں۔ اچھا بچوں، 5 اوشنز جو ہیں وہ دنیا میں پائے جاتے ہیں: پیسیفک اوشن، اٹلانٹک اوشن، انڈین اوشن، انٹارکٹک اوشن اور آرکٹک اوشن۔ تو میں اب 1 بائی 1 آپ کے سامنے ان کے جو اسپیسیفکیشنز ہیں، فیچرز ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا جاتا ہوں۔ اس کو غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے ہم پیسیفک اوشن کی بات کریں گے۔ پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ اس کا جو ایریا ہے وہ تقریباً 168 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے، اور اس کی جو ایوریج گہرائی ہے، ڈیپتھ ہے، وہ 4000 میٹر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم سمندر کی سطح سے اس کے اوشن کے بیڈ تک ہم اندازہ لگائیں تو کم و بیش جو ہے وہ ایوریج جو اس کی گہرائی بنتی ہے وہ 4000 میٹر ہے۔ اور اس میں ان سمندروں کے اندر والکینوز بھی پائے جاتے ہیں، ٹرینچز بھی پائی جاتی ہیں، یعنی گہری گہری کھائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو پیناما کینال ہے وہ پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن کو آپس میں جوڑتی ہے، اور یہ جو پیناما کینال ہے یہ جو ہے ایک بہت ہی اہم تجارتی گزرگاہ بھی ہے۔ اچھا بچوں، اس کے بعد آتا ہے اٹلانٹک اوشن۔ اٹلانٹک اوشن دنیا کی کا دوسرا بڑا اوشن ہے۔ اس کا جو رقبہ ہے، ایریا ہے، وہ تقریباً 85 ملین اسکوائر کلومیٹرز ہے، یعنی 85 ملین اسکوائر کلومیٹر اس کا ایریا ہے، اور اس کی جو ایوریج ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے، وہ 3900 میٹر ہے۔ اچھا، اس اٹلانٹک اوشن کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، جو نمایاں ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر مڈ اوشنک رج ہے، یعنی سمندر کے درمیان میں ایک رج بنی ہوئی ہے جو کہ سمندر کی جو زمین کی تہ ہے، جو اس کی فرش ہے، اس پر جو والکینک ماؤنٹینز ہیں، یعنی آتش فشاں تھے،
वो कभी किसी दौर में फटे और उनकी वजह से एक दरार पड़ गई ज़मीन के अंदर, जो कि इस समंदर के अंदर एक बहुत लंबे इलाके तक देखी जा सकती है। और ये जो दरार है, ये जिसको कि हम ओशनिक रिज बोलते हैं, ये अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक और एंटार्क्टिक ओशन, इन चारों समंदरों से ये रिज जो है वो गुजरती है। और ये जो समंदर है ये उन इलाकों में वाक़ है जहाँ पर के ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आते हैं, और यही समंदर दुनिया की मसरूफ़ तरीन तिजारती गुज़रगाह भी है। तीसरा है बेटा इंडियन ओशन। ये दुनिया का तीसरा बड़ा समंदर है। इसका रकबा तकरीबन 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। इसकी एवरेज डेप्थ भी कमोबेश 3900 मीटर्स है। और ये जो हमारा जनूबी कुर्रा अर्ज़ है, खित्ता है, ठीक है, हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है, ये वहाँ तक फैला हुआ है। आप की बुक में इसकी पिक्चर भी बनी हुई है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो इंडियन ओशन है ये हमारे कुतुब जनूबी तक जो है, जो एंटार्क्टिक ओशन जहाँ पर शुरू होता है वहाँ तक ये फैला हुआ है। इसमें जो मिड ओशनिक रिज है, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया, अटलांटिक ओशन में वो दरार जो कि आतिफ शाह के फटने से पैदा हुई, वो भी इस समंदर के अंदर भी ये मौजूद है। और यही जो रिज है ये इंडियन ओशन को दो हिस्सों में, मगरबी और मशरकी हिस्सों में तकसीम करती है। इस समंदर में भी गहरी गहरी खाइयाँ भी मिलती हैं। इसमें सबसे गहरी खाई जो है वो 7400 मीटर गहरी है, यानी 3900 मीटर तो इस समंदर की अपनी गहराई है। मगर इसके अंदर जो खाइयाँ पाई जाती हैं, उन खाइयों में जो सबसे गहरी खाई है उसकी गहराई जो है वो 7400 मीटर है। और इंडियन ओशन भी अब एक बहुत अहम तिजारती गुज़रगाह बन चुकी है, जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स के दरमियान सुएज कैनाल की वजह से आपस में मुंसलिक है, जो कि रेड सी यानी इंडियन ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ जोड़ती है। ठीक है, ये आपने नहर सुएज का जिक्र सुना होगा अक्सर। ये मिस्र ने जो है, मिस्र में ये पाई जाती है, और ये इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन ओशन को, सी को, इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन सी को आपस में जोड़ती है। और इस नहर के ज़रिए दुनिया की एक बहुत बड़ी तिजारत जो है वो यहाँ पर होती है। चौथे नंबर पर है एंटार्क्टिक ओशन। अपने रकबे के लिहाज से भी ये चौथे नंबर पर है। इसका जो कुल रकबा है, एरिया है, वो है 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी जो एवरेज डेप्थ है, औसत गहराई है, वो 4000 मीटर है। इसकी कोई वाज़ेह बाउंड्री नहीं है। ये पैसिफिक और इंडियन ओशन के साथ मिला हुआ है। ठीक है, और आप देख सकते हैं तस्वीर में भी आपको ये नज़र आएगा कि ये जो एंटार्क्टिक ओशन है ये इंडियन ओशन के साथ और अटलांटिक ओशन दोनों के साथ ये मिला हुआ है, बीच में कोई किनारा नहीं है। एक्सट्रीम कोल्ड वाटर एंड ह्यूज आइसबर्ग्स आर कैरेक्टरिस्टिक। अब ये जो हमारा एंटार्क्टिक ओशन है, इसकी वाज़ेह या अहम खसूसियत क्या है कि इसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और इसमें आइसबर्ग भी मिलते हैं। चूँकि ये एंटार्क्टिक ओशन जो है ये साउथ पोल के नज़दीक वाक़ है, और आप जानते हैं कि साउथ पोल वो इलाका है कि जहाँ पर सारा साल बर्फ़ जमी रहती है। तो वहाँ इस ओशन का पानी जो है वो नहायत ठंडा है, और इस ओशन के पानी में आइसबर्ग कहते हैं, बर्फ़ के बहुत बड़ी बड़ी सी चट्टानें जो पानी के ऊपर तैर रही होती हैं, इनको हम आइसबर्ग्स कहते हैं, जो कि एंटार्क्टिक ओशन में पाई जाती हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद है 5वें नंबर पर आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन इज सिचुएटेड अराउंड द नॉर्थ पोल। जिस तरह
साउथ पोल के इर्द गिर्द एंटार्कटिक ओशन है, इसी तरह नॉर्थ पोल कुतुब शमाली नॉर्थ पोल के इर्द गिर्द जो समंदरी इलाका पाया जाता है इसको हम आर्कटिक ओशन कहते हैं। इसका जो कुल रकबा है वो तकरीबन 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 1200 मीटर्स है। शैलो वाटर्स, लो सैलिनिटी एंड फ्रोजन सरफेस ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी चूँकि ये समंदर हम नॉर्थ पोल के करीब पाया जाता है, साउथ पोल की तरह नॉर्थ पोल पर भी हमेशा सारा साल बर्फ़ जमी रहती है और दर्जा हरारत बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो इस ओशन का पानी भी वो जो है वो उसकी सतह जो है वो हमेशा जमी रहती है, बर्फ़ किसी शक्ल में जमी रहती है, ठीक है बच्चों। तो ये थे इस आर्कटिक ओशन के जो है सेलिएंट फीचर्स। ये 5 जो हमारे ओशंस हैं दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, इनकी डिटेल्स मैंने आपके सामने पढ़ी हैं और ये डिटेल्स आपकी बुक के अंदर भी लिखी हुई हैं और पिक भी बनी हुई है, डायग्राम बना हुआ है जिसके अंदर ये 5 ओशंस जो हैं ये दिखाए गए हैं। तो बच्चे इस डायग्राम को देखते हुए आप लोग इस पेज नंबर 22 और 23 को आप रीड करें और आपको इंशाल्लाह इसकी मज़ीद बेहतर तौर पर समझ आएगी। इसके बावजूद अगर किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे सवाल पूछकर अपनी उलझन को दूर कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।